Hello students, hope you all are good. See, today we are going to start a new topic, that is small scale industry and business. In this topic we are going to study introduction, meaning, definition, importance of small scale industries, advantages of a small scale industries, challenges faced by small scale industries, and step in setting up of a small scale business. See, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है. इंडिया इज़ अ कंट्री विथ ह्यूज पॉपुलेशन, ये हम सबको पता है. एंड द मेजर प्रॉब्लम हियर वी आर फेसिंग, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है. एंड हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो there is a need to revive the small scale industries because they are the one who are absorbing maximum population. अभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसमें ज़्यादा स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं होती है. उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में स्किल्ड, अनस्किल्ड, हर तरह लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड पीपल. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को वो क्या करती है, अब्जॉर्व करती है, उनको मीन्स ऑफ लिविंग देती है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ पीपल आर स्टेइंग इन रूरल इंडिया. नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ small scale industry. Rising population must be given equal opportunities of means of livelihood. The problem of unemployment is becoming more serious in India. In post-independent period, more attention is given to the development of small scale industries. However, the problem of unemployment is not overcome by new industrial policy. There is a huge importance of farming industry, small scale industry, cottage industry in Indian economy because it absorbs the maximum population. It absorbs the population. They provide employment opportunity to skilled as well as unskilled people. As far as developing country like India is concerned, it is necessary to make available the capital and other resources for small scale industries. It is a fact that unskilled and semi-skilled artisans required for and small-scale industries are easily available in large number in rural area. Small-scale industry play an important role in such type of developing countries where there is availability of less capital and more manpower. See, small-scale industries उन countries के ऐसे developing countries के लिए बहुत important role play करती है जहाँ पे availability of capital जो है बहुत कम है and manpower ज़्यादा है. Small scale industries are those industries in which manufacturing, providing service, production are done on small scale or micro scale. See, small scale industries वो सारी industries है जिसमें manufacturing, providing services, production are done on small or micro scale. Now next is meaning of small scale industry. Traditionally, the industries in India which are organized on small scale and produce goods with help of machine, labor and manpower are considered as small scale industry. Initially, two categories were concerned: those using power with less than 50 employees and those not using power with employee strength more than 50 but less than 100. However, capital resource invested in plant and machinery building have been the primary criteria to differentiate small scale business from large and medium scale business. In industrial unit, an industrial unit can be categorized as small business if it fulfill the capital investment limit fixed by Government of India according to Micro, Small and Medium Enterprise Development Act MSMED 2006. See, traditionally the industries in India which are organized on small scale, जो स्मॉल स्केल पे ऑर्गेनाइज होते थे एंड जहाँ पे ट्रेडिशनली मतलब कैसा बाइफरकेट होता था. ट्रेडिशनली द इंडस्ट्रीज इन इंडिया विच आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्मॉल स्केल एंड प्रोड्यूस गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन, लेबर एंड पावर आर कंसिडर्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Initially, two
कैटेगरीज वेर कंसिडर। इनिशियली 2 कैटेगरीज कंसिडर हुआ था, मतलब ट्रेडिशनली कैसा ये लोग बाइफरकेट करते थे, तो इनिशियली 2 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया था, विथ दोज यूजिंग मैन पावर एंड दोज नॉट यूजिंग मैन पावर। अभी दोज यूजिंग पावर with less than 50 employees and those not using power with employee strength more than 50 but less than 100। मतलब पहले इनिशियली 2 कैटेगरीज थी, इसमें पावर के साथ 50 एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं एंड नॉट यूजिंग, और जो इंडस्ट्री जो पावर यूज़ नहीं कर रही है उनका एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेंथ कितना है, 50 मोर देन 50 बट लेस देन 100। हाउएवर कैपिटल जो रिसोर्सेज था, हाउएवर कैपिटल रिसोर्स इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग एक्सेट्रा हैव बीन द प्राइमरी क्राइटेरिया। वो प्राइमरी क्राइटेरिया था टू डिफ्रेंशिएट स्मॉल बिजनेस फ्रॉम लार्ज एंड मीडियम स्केल बिजनेस। मतलब जो कैपिटल रिसोर्सेस है, कैपिटल रिसोर्स जो इन्वेस्ट हुआ है इन प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग एक्सेट्रा हैव बीन द प्राइमरी क्राइटेरिया। ये प्राइमरी क्राइटेरिया है टू डिफ्रेंशिएट स्मॉल बिजनेस फ्रॉम लार्ज स्केल एंड मीडियम स्केल। अभी देखो नीचे यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस दिया है ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू MSMED। MSMED माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे इसे जो है बिजनेस जो है उसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, मैन्युफैक्चरिंग में, वन इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अदर वन इज सर्विस सेक्टर। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में माइक्रो, किसी इंडस्ट्री को माइक्रो कब बोला जाएगा, व्हेन द कैपिटल इन्वेस्टेड डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख। उसको माइक्रो बोला जाएगा जब उसमें जो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक का है, इट विल बी कंसिडर्ड एज माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और सर्विस सेक्टर के लिए द लिमिट इज़ 10 लाख। सर्विस सेक्टर के लिए कितना लिमिट है, 10 लाख, इट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख। अभी मैन्युफैक्चरिंग में कैसा होता है कि रॉ मटेरियल लगता है, उसमें वर्किंग कैपिटल लगता है, तो मैन्युफैक्चरर की जो लिमिट है वो थोड़ा ज़्यादा है एंड सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होता है तो उसकी जो लिमिट है वो थोड़ा कम रखा है। तो यहाँ पे माइक्रो के लिए इट शुड नॉट एक्सीड 25 लाख, सर्विस के लिए इट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख। अभी स्मॉल, to consider small scale industry more than 25 lakh but does not exceed 5 crore। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए बट इट शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। सर्विस सेक्टर में इट शुड बी मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। मतलब अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसमें तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिडर नहीं होगा, तब उसे मीडियम टर्म इंडस्ट्री कंसिडर होगा। और अगर वो 10 लाख से कम है तो वो स्मॉल में नहीं आएगा, वो माइक्रो की कैटेगरी में आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ मीडियम, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मीडियम सेक्टर कब बोला जाएगा उसे, जब उसका जो इन्वेस्टमेंट है इट विल बी मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा होगा बट इट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़। एंड फॉर सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए इट शुड बी मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस on the basis of investment according to MSMED। अभी जो बिजनेस है उसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर वो माइक्रो सेक्टर है तो उसका लिमिट इज़ 25 लाख, इट शुड नॉट एक्सीड 25 लाख। 25 लाख, अगर वो 25 लाख से ज़्यादा होगा तो माइक्रो में कंसिडर नहीं होगा, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कंसिडर होगा। एंड फॉर सर्विस सेक्टर इट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख। अभी स्मॉल स्केल के लिए इट शुड बी मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। मतलब 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए बट 5 करोड़ से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो वो माइक्रो, वो स्मॉल इंडस्ट्री में कंसिडर नहीं होगा, फिर वो मीडियम इंडस्ट्री में आ जाएगा। एंड फॉर सर्विस सेक्टर मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। सर्विस सेक्टर में इट शुड बी मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए बट इट शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़।
Next is definition of small scale industry. Any industrial unit is regarded as small scale industry if the following condition is satisfied. अब इसमें अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो इंडस्ट्री जो है वो क्या कंसिडर होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. मतलब एनी यूनिट इज रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई. इन्वेस्टमेंट इन फिक्स asset like plant and equipment either held on ownership term or on lease or hire purchase should not be more than 1 crore. However, the unit in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial unit. See, अभी industrial unit is regarded as small scale industry. सारी इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिडर होगी अगर उसका जो इन्वेस्टमेंट है इन फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट ईदर हेल्ड और ओनरशिप टर्म, या तो ओनरशिप है या तो लीज और हायर परचेस पे है, शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़. अगर वो मोर देन 1 करोड़ हुआ तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कंसिडर नहीं होगा. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज कंसिडर होगी जिसका इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट लाइक प्लांट and equipment either held on ownership terms or on lease or hire purchase should not be more than 1 crore. 1 crore से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. However, the unit in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial unit. And उसके बाद का क्राइटेरिया है कि जो यूनिट है इट शुड नॉट बी ओन्ड और कंट्रोल्ड और ऑक्सिलरी सब्सिडारी फॉर एनी अदर इंडस्ट्रियल यूनिट. वो यूनिट किसी भी तरह का वो यूनिट शुड नॉट बी कंट्रोल ऑक्सिलरी फॉर एनी अदर इंडस्ट्रियल यूनिट. मतलब जो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो किसी और इंडस्ट्रीज का ब्रांच नहीं होना चाहिए. किसी और इंडस्ट्री कोई और इंडस्ट्री उसे कंट्रोल कर रही है, उस सब्सिडी है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. मतलब इसमें दो क्राइटेरिया है. एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लिमिट दिया है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट either held on ownership basis or on hire or lease should not be more than 1 crore. 1 crore से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड दूसरा कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन इज द यूनिट इन नो वे, however the unit in no way can be owned, control और auxiliary subsidiary for any other industrial unit. वो जो यूनिट है, जो स्मॉल स्केल यूनिट है, वो किसी और इंडस्ट्रियल यूनिट के कंट्रोल में या तो सब्सिडारी नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के दो कंडीशंस है जो फुलफिल करनी है. पहला है जो इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़. चाहे आपका लीज है, हायर बेसिस पे है या ओनरशिप बेसिस पे है, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़, शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़. और सेकंड है, सेकंड कंडीशन इज द यूनिट इन नो वे कैन बी ओन. जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो किसी और की ब्रांच, सब्सिडारी, कंट्रोल नहीं होना चाहिए. So classification of small scale industry into traditional small scale industry, modern small scale industry. अभी ट्रेडिशनल्स में क्या क्या आता है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री. और मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बाईसाइकिल, स्विंग मशीन, ब्लेड रेजर, electronic appliances, spare part. So with this I would like to end the session. Hope the things are very clear to you all.